کا دل تو کسی کی زبان ہے اشرف، دل تو کسی کی زبان ہے اشرف۔ سر سے پا تک نور حق کی روشنی اوڑھے ہوئے، سر سے پا تک نور حق کی روشنی اوڑھے ہوئے، مصطفیٰ آئے ہیں چادر نور کی اوڑھے ہوئے، مصطفیٰ آئے ہیں چادر نور کی اوڑھے ہوئے۔ کم بیزنی جب کہا مردے سے غوث پاک نے، قبر سے نکلا وہ فوراً زندگی اوڑھے ہوئے، قبر سے نکلا وہ فوراً زندگی اوڑھے ہوئے۔ حضرات، نعت حبیب داور آپ تمامی حضرات محبتوں سے کافی دیر سے سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے ایک خوبصورت خطاب سے ہم اور آپ مستفیض ہوں۔ میں خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا نوشاد صاحب قبلہ اشرفی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے محبتوں سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اسٹیج پر تشریف فرما شہزادے مخدوم سمنہ حضرت علامہ سمنانی میاں صاحب قبلہ، دیگر معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور ہمارے مخدومان گرامی جو تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار، مولائے کبار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر حدیث درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی پر جھوم کر بلند آواز سے ایک بار اور پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ حضرات، ہم سب آج عرس چہلم کے موقع پر یہاں پر حاضر آئے اور ہمارے شہزادگان تشریف فرما ہیں، جن کے دیدار کے لیے اور ان کے مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی تشریف فرما ہوں گے۔ میں صرف چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ یہ آپ حضرات اکثر و بیشتر سماعت کرتے رہتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں کہ ہر چیز مٹ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔
जबकि दूसरी आयत करीमा में सिर्फ जानदार चीज़ों का जिक्र है कि मर जाएंगी, लेकिन इस आयत करीमा में सारी चीज़ों को, चाहे जानदार हो या बेजान हो, सारी चीज़ें मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी, कोई भी चीज़ बाकी न रहेगी। एक मुसल्लमा हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे और आपके दरमियान से जाने वाले न मालूम कितने जाते हैं, न मालूम कितने आते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से अगर उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अजीज व अकारिब को जहाँ पर तकलीफ होती है, जैसा कि हर एक का दस्तूर है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसके घर वाले और उसके अजीज व अकारिब को तकलीफ हुआ करती है। लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे भी हुआ करते हैं, कुछ पर्दा करने वाले ऐसे भी पर्दा करते हैं कि उनके जानने से सिर्फ उनके अहले खाना, उनके अजीज व अकारिब ही नहीं रंजीदा होते और वही परेशानी का शिकार नहीं होते, बल्कि पूरा इलाका, कभी कभी ये मामला ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग उससे परेशान होते हैं। ये जाने वाली शख्सियत जो हमारे और आपके दरमियान से गई, अगर मैं ये कहूं तो यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल दुरुस्त होगा, इसलिए कि एकदम अचानक जिसको कहते हैं। सिर्फ एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, तकरीबन घंटों बैठ करके यहीं पर बातचीत हुई, लेकिन किसी तरह से भी किसी तरह का कोई एहसास ऐसा नहीं हुआ कि हजरत बीमार है, अलील है। बिल्कुल इस तरह की कोई बात जर्रा सा भी उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज से किसी तरह का कोई मामला नजर नहीं आया। और या बखूबी जानते हैं कि उनके पास सुबह होते ही, मेरा ख्याल ये है कि कभी कभी तो सूरज निकलने से पहले ही यहाँ पर उनके पास आने वालों का सिलसिला लग जाता था। आने वाले अपने अपने मकसद के लिए, आने वाले अपने अपने काम के लिए, अपनी अपनी जरूरत के लिए हाजिर हुआ करते थे। हजरत जिस तरह भी होता था उनके लिए दुआएं किया करते थे, और लोग यहाँ से जाते थे तो यकीनन मुस्कुराते हुए जाते थे। तो पता ये चला कि उनके जाने से सिर्फ उनके अहले खाना ही रंजीदा नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जिनकी वो जरूरत पूरा किया करते थे, जिनकी हाजत पूरा किया करते थे, जो उनके पास आते थे, बैठते थे, जो उनके हुस्न अखलाक से मुतासिर थे, उन सब के लिए ये एक धचका है, और ये एक बहुत बड़ा धचका है। तो हजरात मोहतरम, ये एक सच्चाई है कि इंतकाल करने वाला जब इंतकाल कर जाता है, तो जैसा कि हदीस पाक में है कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो उसके सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, सारे के सारे आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। मरने के बाद भी उसका यह सिलसिला जारी रहता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, रुक जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी होती हैं इंतकाल के बाद भी उनका सिलसिला, उनका फैज जारी रहता है। उनमें से एक सदक़ा जारिया है कि अगर आदमी ने अपनी जिंदगी में कोई सदक़ा जारिया किया है तो ये सिलसिला उसके इंतकाल के बाद भी जारी रहता है। सदक़ा जारिया के बहुत से तरीके हैं, बहुत सी सूरतें हैं। मस्जिद बनवा देना, मस्जिद में काम कर देना,
मदरसे तामीर करना, लोगों की आसानी के लिए पुल है, रोड है, नल है, जिससे भी सिर्फ खुदावंद कुद्दूस की रजा के लिए और आवाम के सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए चीजें भी अगर कायम की जाएं तो ये भी सदक़े जारिया कहलाती है। जब तक ये चीजें रहेंगी उस वक्त तक ये सिलसिला सवाब का चलता रहेगा, जब तक कि लोग उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और दूसरी चीज है और इल्मिन युंतफ़अ बिही, कि वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, जिससे नफा हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर अपनी जिंदगी में जिस शख्स ने इल्म हासिल किया, तो इल्म हासिल करने वाले ये आप जानते हैं कि दो तरह के हैं। कुछ लोग हैं खुद तो बहुत कुछ इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को महफूज रखते हैं, अपने आप को संभाल कर रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं और इनफरादी तौर पर अपने तौर पर तकवा और परहेजगारी भी इख्तियार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के बाद चाहे वो दर्स व तदरीस के जरिए हो, चाहे वाज़ो नसीहत के जरिए हो, चाहे वो खिदमत खल्क जिस तरीके से भी अपने इल्म को चाहे मजलिसी गुफ्तगू में हो, जिस तरह से भी होता है, वो अपने इल्म को फैलाते हैं और लोगों के सामने नसीहत करते हैं, उनको नमाज, रोजा और तमाम दीनी जरूरतें जो होती हैं उनकी उसको पूरा करते हैं, उसको बताते हैं, चाहे तकरीर करके, चाहे दर्स दे देकर, चाहे मजलिसी गुफ्तगू में बैठ करके लोगों को जो मसले मसाइल और दीनी चीजें सिखाते हैं। तो पता चला कि इससे उनका ये इल्म जो बांटना है, जो लोगों को इल्म दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, जो लोगों को उससे सिखा रहे हैं, तो ये सिलसिला जब तक कि उन्होंने जो चालू किया है, अगर उनके बाद वाला दूसरों को पढ़ाएगा, दूसरों को सिखाएगा, दूसरों को नमाज की तालीम देगा, रोजे की तालीम देगा, तो यकीन जानिए ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये इस तरह से इल्म जारी रहेगा। और तीसरी चीज ये है कि मरने वाले ने अगर, इंतकाल करने वाले ने अगर अपने पीछे नेक और सालेह औलाद छोड़ी है, और वो नेक और सालेह औलाद अगर उसके हक में दुआए खैर करती रहेगी, नेक दुआ करती रहेगी, तो इसका सिलसिला भी उसके लिए चलता रहेगा। जैसा कि कलयुगी में अल्लामा शहाबुद्दीन ने नकल किया है कि एक शख्स ने, एक नौजवान के जब वालिदैन का इंतकाल हो गया, उनकी जुदाई का उसके ऊपर बेइंतहा गम था, बहुत परेशान रहा करता था। उसने ये फैसला और तहैया कर लिया कि हम अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए हफ्ते में एक दिन की जो हमारी कमाई होगी उसको लगा देंगे। हमारी हफ्ते की एक दिन की जो कमाई होगी उसको वालिदैन के इसाले सवाब पर खर्च किया करेंगे। यहां तक कि उसने अपना मामूल बनाया। एक जमाने तक जो भी मेहनत और मशक्कत करता, जुमा के दिन उसकी जो भी कमाई होती, उसका सब कुछ, पूरी अपनी कमाई का वो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर देता, गरीबों और मोहताजों को खिलाता, जरूरतमंदों को अपनी उस कमाई को सर्व करता। ये सिलसिला चलता रहा। यहां तक कि एक मर्तबा ऐसा मामला पेश आया कि उसको किसी तरह का कोई काम न मिला, पूरा हफ्ता परेशान रहा, उसको अपने खाने के लिए भी परेशानी। अब वो बिल्कुल परेशानी के आलम में सोच रहा है आखिर मैं क्या करूं। मैंने अहद किया है कि मैं अपनी कमाई का एक दिन का हिस्सा जो एक हफ्ते में होगा, मैं उसे वालिदैन के लिए इसाले सवाब करूंगा। और सूरत हाल ये है कि मुझे न मजदूरी मिल रही है, न मेरे पास इस वक्त कोई रोजी रोजगार का कोई जरिया है। आखिर मैं किस तरीके से अपने इस अहद पर कायम रहूं। एक आलिम दीन के पास पहुंचा, एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उनसे अपनी इस बात को अर्ज किया। उनके पास अपना यह मुद्दा उसने बयान किया कि मैं बहुत परेशान हूं,
आखिर किस तरीके से मैं इस पर अमल करूं? उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा जब हर हफ्ता अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करते हो, गरीबों और मोहताजों को अपनी कमाई का एक हिस्सा उन पर सर्व करते हो, तो अभी चाहते हो तो तुम्हारे वालिदैन को सवाब इसका मिल सकता है। जाओ बाजार चले जाओ, वहां पर जो भी सब्जियां, छिलके, फलों के और जो भी चीजें मिले उनको उठा कर लाओ और लाने के बाद उन्हें साफ सुथरा करके अपने गांव के उस रास्ते पे डाल दो जहां से शाम के वक्त आपके गांव के चरवाहे जानवरों को लेकर के आया करते हो। हजरात मोहतरम, लिखा हुआ है कि जब वो शख्स, वो नौजवान बाजार गया, सब्जियों और छिलकों को लेकर के शाम के वक्त पहुंचा, उस रास्ते पर डाल दिया जिस रास्ते के ऊपर जानवर गुजरते थे। शाम का वक्त हुआ, जानवरों ने उन तमाम चीजों को खा लिया और उसके बाद इसको भी इत्मीनान हुआ कि मैंने कुछ भी सही इंसानों की मदद न कर सका, मैं अपनी कमाई का हिस्सा इंसानों पे खर्च ना कर सका, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैंने मेहनत करके छिलका और घास फूस ला करके जानवरों के सामने डाल दिया। उसको इस बात का थोड़ा इत्मीनान हुआ। रात का वक्त हुआ, वो तो सो जाता है, इत्मीनान के साथ वो सोया हुआ है, लेकिन ख्वाब में देखता है। ख्वाब में जब देखा तो अपने वालिदैन को बड़ी खुशी और खुर्रम की हालत में देखा कि उनके सामने हर तरह के खाने पीने मौजूद हैं, बड़े खुश हैं, अपने बेटे को शाबाशी दे रहे हैं। और साथ ही साथ देखा उनके सामने उनके वालिदैन ने उनसे कहा कि बेटे, हम तुमसे खुश हैं कि जब से हमारा इंतकाल हुआ है तुम बराबर इसाले सवाब करते रहते हो। यहाँ तक कि हमारा दिल चाहता था कि खरबूज खाएं, हमारा दिल चाहता था तरबूज खाएं, और उसको भी तुमने नहीं छोड़ा, आज तुमने वो भी खिला दिया। हजरात मोहतरम, इससे आप अंदाजा लगाएं, यहीं से आपको अंदाजा होना चाहिए कि नेक और साले औलाद जो है, जो अपने माँ और बाप के लिए इसाले सवाब किया करती है, तो उसका इसाले सवाब करना उसके वालिदैन के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए पहुंचा करता है और इससे वो खुश हुआ करते हैं। इसी तरह की ये महफिलें जो की जाती हैं, चाहे वो तीजे के नाम पे हो, चाहे वो 40वां के नाम पे हो, चाहे वो सालाना के नाम पर हो, उनका सिर्फ मकसद यही हुआ करता है कि इसके जरिए से हम अपने बुजुर्गों को, अपने अहले खाना को जो इंतकाल कर चुके हैं, उनको इसाले सवाब करें। दुआ है कि परवरदिगार अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में सैयद मास्टर इजहार साहब क़िबला की कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए और उनकी कब्र को मुनव्वर और रोशन फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।